Hi, all learners. People often get confused when to enter, when to exit. One is valuation front analysis, another one is sentimental front analysis. Valuation front analysis in India, I don't think that people are doing. Most of the time, people do a technical trade or a sentimental trade. Sentimental trade and technical trade both are very close to each other. In sentimental trade is much deeper concept where you can understand greed and fear of the people participant, because when you analyze the sentiment, you say analyze the fear and greed. When you analyze technical things, you analyze the chart. So I'll give you two three perspective that how one can do that, that whatever suits you, that you do or combine. And and it is very easy, it's not complicated. Say, Nifty, this is a relative strength index I have shown. RSI normal, 14 EMA crossover, MA crossover. That's it. No other changes or no other paid indicator kind of a thing. See, you will observe a pattern. What pattern? That whenever, sorry, whenever it comes near this particular level, this is a time to book your profit. Anytime if RSI touch 75 plus, that is the time to be cautious. And whenever it goes in a downtrend, it gives a bounce back towards what level? 59, 60, 66, 67, and that range. This time also, after a straight fall, it has given a bounce, like straight fall, bounce, again I'm making a double bottom, then again it is going up towards 64, 65. And then how we can understand that this is not a very strong sentiment and now we should like close our position. You can just open and see the index as well. Like one is RSI approach. Whenever our 20 EMA will also on a daily, this is a weekly I have shown you. Weekly RSI, always look at a weekly RSI when you are looking at a sentiment. Now come on a daily, you will see on a chart. One, I told you that when to think that, okay, fine, this is a time, no, it may reverse. So reversal indication is clear cut from here whenever it crossing 20 SMA. So you know that now this last 6 7 days, whatever accumulation, it is not able to close. Even there is a gap down, a strong gap down, and now slowly it is sliding. Where it will take support, when it can, again, I am saying it is a sentimental driven market. So the more we will panic, the more it will slide. Now, how we can like say that, okay, fine, now we want to refine further that where it can bounce. So that part I'm going to talk about. Now, there is a market break. I do check that. So market breadth is what? Market breadth is how many stocks in a market is above 20 DMA, below 20 DMA, above 50 DMA, and below 50 DMA. So if you look at few of my message on my mentorship group, I don't take any presently, I don't do any mentorship. It is a past group. So where I do post some or other thing to existing people who were with me from last year, July. So it is a July, 1 second. First, next week onwards, closing
further short-term position. That is a June message. Fine. And market breadth suggesting almost highest number of stocks are above 50 year. Slowly, we may see number is coming down, and we may see the sector specific move, but overall negative market breadth or normal profit booking. Because I'm not going to predict market. You should be in flow. I'm not a Gyani Baba who knows, hey, this date, this will happen, that cycle, this way. I don't know all these things. I work on data. I work on facts in short term. In long term, it is fundamental. In short term, always it is sentimental. Now, if you understand greed and fear, then it is very easy for you to understand. Instead of taking opinion from others, you'll be able to understand if you just conclude certain data points. Now, look at a normal profit booking I told. Here also we have a stocking tab. In stocking tab, we capture valuation, but we don't give a lot of customized thing to you. We give very shorted 750 stocks. And in that we give that where people, what is the weekly, monthly, daily, quarterly price action? What is the last 14 days uh, money flow? I'm going to show you that as well. I'm just showing you the message where I put us sector showing no inflow, slowly all index standing negative to cautious in all time frame. That is also a July month message. You will see on my Twitter page also same message I have shared. It is not hide and seek paid or something group. It is a learning group where I do share, I post. So if anyone is still learning, so they can get some or other help because last 1 year market is really volatile. It was not in uptrend and it was completely in a zigzag territory and where some new participant may feel to very uncomfortable to how to handle such situations. So in short term, people do panic. So they should not do panic. So that is why the learning video, whoever is my subscriber or whoever is watching my video, if they also can get some or other benefit out of it. So now when in March all were not agreed, only few stocks were above 20 and there's some message was there above 50 and 20 and 50 DMA. Fine. Here, if you see, the stocks were at only 200 numbers, 300 number, which is above 20 DMA. This is a March picture. In March, where we were in, if you come on Nifty, so more or less in this zone. I'm not talking here. We were in extreme. That time, how many stocks are above 20? Overall market breadth was saying only 200 stocks were above 203, 250, also 200. So now most of the people bullish now. Again, look at our message. Market will not reward if all agreed. If everyone agreeing, okay, fine. So this is also July month message where 1300, 1400 stocks were above 50 DMA, 20 DMA. So market is not going to reward everyone. Somebody should be clever, like we'll be snatching some profit out of it. Since market is always sentimental, so many geopolitical news will come, but that will come on a top. Even it comes on a bottom, no, it will not fall. If same Trump news is coming where market valuation is very cheap, so that is why sentiment to be backed by valuation as well. And whenever a sentiment will get a chance, okay, no, Indian market always get a premium. So Indian market is getting a premium, so always people will be shorting one or other day. Now look at market breadth as of now. This is a like screenshot taken on 1st August. Again, it is going slowly down toward 200 and above 50 DMA also. We may see 2 3 days again further slide. Maybe we don't know. We are not predicting anything. So always try to connect with the data that when the people will panic, when again data will come in a flow, the good business will be rewarded.
No need for multiple theories. You can do that if you are feeling confident. Okay, no, this Fibonacci is working for me. Everything for me, it is always data backed by कुछ भी ले लो. आप Fibonacci ले लो. So any date you take. So because everything is having a backed by research. जो भी Fibonacci या कोई Gann date उसका भी लॉजिक होगा या कुछ एस्ट्रोलॉजी उसका भी कुछ लॉजिक होगा. बट फॉर मी डेटा रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग. ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में सारे स्टॉक आ गए और सारे स्टॉक आपका शुरू से गिर जाए. वो होगा तो ब्लैक स्वॉन इवेंट होगा. दैट काइंड ऑफ अ डेज विल बी वेरी रेयर. फाइन. दैट दिस पार्ट आई होप इट इज क्लियर. One, we saw RSI of a Nifty, or you take Bank Nifty, you will see a similar pattern. कि RSI कहीं पे आपका एक रेजिस्टेंस लेता है और कहीं पे जाके एक सपोर्ट लेता है. नाउ ऑन अ वीकली, फाइन, डोंट लुक एट डेली चार्ट में जाओ. देखो 20 DMA के नीचे चला गया है बिकॉज यू आर कैप्चरिंग शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट क्या है. वीकली में आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए पहले से रेडी रहो. जैसे ही 64 65 के आसपास आ जाए, आप अगर लगता है कि नहीं लास्ट टाइम भी ऐसा था, मार्केट ब्रीज भी थोड़ा 1500 में चला गया है, फाइन, 1400 1500 स्टॉक अगेन अबव 20, सो बेटर टू बुक प्रॉफिट. पॉइंट वन. सेकेंड, आप आ जाओ स्टॉकिंग में, सेक्टर इंडाइसेस में आप अगर आ जाते हो, यू विल सी FMCG एंड कंजम्पशन इज ऑन डेली पॉजिटिव. इट इज अ डिफेंसिव सेक्टर. कुछ भी हो जाए, लोग खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, कंजम्पशन नहीं छोड़ेंगे. सो ये दो थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में है. बाकी सारे नेगेटिव में चला गया है. आप अगर वीकली में भी देखोगे तो आपको फार्मा दिख रहा है, हेल्थ केयर इंडेक्स दिख रहा है जो क्वार्टरली मंथली में सारे में आपका अच्छा है कि पॉजिटिव है. बट बहुत दिनों से है, हो सकता है कि फिर भी चले. उसको कैसे पता चले कि अभी हम लोग को फार्मा में जाना चाहिए नहीं चाहिए. यू विल सी के इन फार्मा इंडेक्स, अगेन आई विल से दैट ऑलवेज कोरिलेट विद कॉम्बिनेशन. तो आप देखोगे कि लास्ट डे 3522 करोड़ का डिलीवरी हुआ था. फाइन. डेली एक्शन नेगेटिव था. तो ये शायद नेगेटिव प्राइस एक्शन है दैट वी नीड टू कोरिलेट विद ऑलवेज विद द RSI along with the chart. आप अगर शॉर्ट टर्म में भी, आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट टॉकिंग अबाउट हियर कि लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए. लॉन्ग टर्म में तो आपको कौन कॉल पढ़ना चाहिए, कौन सा बिजनेस में क्या होना हो रहा है वैसा देखना चाहिए. बट इफ यू कम ऑन अ शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट, ये जो लोग पूछते रहते हैं कि क्या होगा क्या करना चाहिए, सब देखोगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है, देन इट इज स्लाइडिंग. The same thing is happening. Somebody has done a short in this particular sector. Stock in will not tell you whether to go long, whether to go short. It will give you data. Now you need to correlate कि यहाँ पे वैल्यूएशन क्या था. चलो अगर मैं हम निफ्टी फार्मा में जाते हैं कि निफ्टी फार्मा, you will see that people, it was at a last 61st जुलाई से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका पी चला गया था 31 से. अभी नाउ इट इज 32.3481 से ही थोड़ा थोड़ा इसमें स्लाइड आना स्टार्ट हो गया है. ये आपका जुलाई का डेटा है. आप अगर इसको, वी आर गिविंग फॉर लास्ट 1 मंथ डेटा, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं कि लास्ट 90 डेज में क्या हुआ है, तो लास्ट 90 डेज में आपको क्लियर कट एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि यहाँ पे आपका निफ्टी फार्मा में ऑलरेडी बाइंग हो चुका था बहुत लो वैल्यूएशन में, एंड इट हैज गॉन अप. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, पीपल आर अगेन exiting. That is why we are seeing some kind of a money flow where we are seeing 30.61 4200. So very large amount of money flow at top is a always distribution. Very large amount of money flow at a bottom where P is very low.
देर इज नो एग्जैक्ट फॉर्मूला कि नहीं पी लो होने से ही होगा, आपको अर्निंग भी देखना चाहिए कि चलो कि अभी आईटी सेक्टर बहुत नीचे हो जा रहा है और अर्निंग नहीं आया, छोटा छोटा बाउंस आ सकता है, बट अगर आईटी सेक्टर में सस्टेनेबल कुछ अर्निंग नहीं दिखता है, दे विल नॉट गेट द हाई पी। पी उसका डेंट होगा, वैल्यूएशन डेंट होगा। सेकेंड है, आप हेल्थ केयर में देखो क्या हो रहा है, हेल्थ केयर में भी यू विल सी के 14% ऐसा करके सारे सारे स्टॉक में नेगेटिव प्राइस एक्शन है मोस्टली ऑन अ डेली बेसिस, एंड ये सारे न्यूट्रल जोन में है, और वैल्यूएशन इज एट पीक। पैसा थोड़ा बहुत आपका परसेंटेज में आ रहा है, इट इज नॉट अ मेजर, मनी इज कमिंग। किसी किसी जगह पे आपको दिखेगा कि अगर अमाउंट वाइज आप देखोगे कि दिस इज द सेक्टर, एफएमसीजी में बहुत ज्यादा पैसा आया है, 54,000 स्विफाई कम ऑन निफ्टी एफएमसीजी। So you'll see that this may be giving a breakout. You will see that this particular sector is turning slowly positive. कि इसी जगह से भी एक रैली हुआ था, इस जगह से भी एक रैली हो सकता है, सो इट मे गो अप। सो दिस इज हैपनिंग इन इंडेक्स फ्रंट। और आपको इंडेक्स में उसका प्राइस एक्शन से देखो कि लास्ट डे प्राइस एक्शन क्या था, आरएसआई कहाँ पे था। आरएसआई ऑलवेज टू बी टेकन एट अ लो लेवल। रन होता रहा है मतलब क्या हो रहा है, पी बढ़ रहा है, अर्निंग अगर नहीं बढ़ रहा है तो एक एक मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटीमेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पहले क्या वैल्यूएशन था देखो, उसको वैल्यूएशन में अगर उसको अट्रैक्टिव लग रहा है तो ही कोई पैसा लेके आएगा। सो somebody is putting money at a FMCG to hedge his position। सारे सेक्टर बेरिश है, वहां से पैसा लेके वो एफएमसीजी में शायद डाल रहा है। उसके बाद आपको दिखेगा कि एमएनसी में भी सेम प्राइस एक्शन तो न्यूट्रल है, बट यहाँ पे भी पैसा आपका परसेंटेज वाइज आया है। सो विच आर द सेक्टर इज नाउ वेरी 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 बेरिश। आपको देखो सारे टर्न हो गया रेड में, आप अगर ये परसेंटेज वाला परसेंट छोड़ दो, if you look at these are the company like a sector which are turning bearish on a weekly time frame। है ना, मंथली में कौन कौन हो रहा है, मंथली में देखो कौन सा सेक्टर को आपको अवॉइड करना चाहिए। क्लियर कट वी हैव गिवन अ वेरी 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 अर्ली सिग्नल कि भाई निफ्टी आईटी मंथली में भी नेगेटिव, मतलब सारे जगह पे नेगेटिव है, वीकली में भी नेगेटिव। ये सारे सेक्टर को आपको अवॉइड करना चाहिए। अभी एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए, जहां पे आपका फंडामेंटली कॉन्सेप्ट, कभी भी एंट्री आपका रैंडम नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी बैक्ड बाय, आप क्यों किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, योर मनी, यू कैनॉट जस्ट सिंपली क्लोज, यू कैन बी लाइट। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन टू एग्जिट, व्हेन टू एंटर, वेयर टू एंटर, वन हैज टू डिसाइड कि मुझे ना प्राइवेट बैंक में ये बैंक अच्छा लग रहा है। आप 25 में लोगे, वो 20 में आ सकता है, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन टेक पोजिशन। बट इन सेंटिमेंटल, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और वो अगर 25 से घूम गया है तो 25 से घूम जाएगा, 20 नहीं मिलेगा। बट रैंडम कहीं पे पैसा आपको नहीं डालना है। वो आप आपका टेक्निकल नॉलेज जो भी है, चार्ट में देखो वीकली ब्रेकआउट हो रहा है क्या, एक्यूमुलेशन हो रहा है क्या, वो सारे स्टॉक इन में भी है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में भी है, अब जहां से भी देख सकते हो। आवर लाइक माई थिंग इज टू कन्वे यू के these are the two three ways where one can check। one is RSI level, entry and exit। second is valuation wise entry and exit, के वैल्यूएशन कहाँ पे है, वैल्यूएशन सबसे सस्ता में सब ले रहे हैं और 25 का पी में ले रहा है, 32 का पी में जाके छोड़ रहा है। तो अगेन इट come close to 32 31 p, so automatically people will dump किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को, वो लोग डंप कर देंगे। फोकस ऑन वैल्यूएशन एंड ऑल्सो लुक एट अ ब्रीथ, मार्केट ब्रीथ क्या था उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। जब भी मार्केट 250 300 स्टॉक आ जाएंगे 100 डीएमए के इस जगह पे,
50 डीएमए के जगह पे आप अपने पसंदीदा जो भी बिजनेस सेक्टर आपको समझ में आता है उस सेक्टर को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू कन्वे पीपल, इंडिया एक, जैसे कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है या इंग्लैंड में मैच हो रहा है, ट्रैक अलग रहता है, स्विंग होता है। अभी तो चलो इंग्लैंड का ट्रैक पिच बहुत अलग हो गया है, बट इफ यू कंसीडर कि इंडियन पिच कैसा रहता है, स्विंग होता है। यहाँ पे अगर 5 बॉलर स्पिनर खिलाएंगे तो स्पिन कर सकता है, हो सकता है हम लोग सीरीज जीत जाए। उसके जगह पे अगर 5 मीडियम पेस टू फर्स्ट बॉलर खिलाएंगे तो हो सकता है कि इट बी वेरी डिफिकल्ट, द ओपोनेंट विल विन। वैसे ही इंडियन इकोनॉमी आपका मोर और लेस कंजम्पशन ड्रिवन है, B2C। आप देखोगे लास्ट 3-4 साल में, अगर कोई एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर का मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है, आपने रेलवे थीम आपने पढ़ा है, आपने पकड़ लिया है, डिफेंस का थीम पकड़ लिया है, बट एवरी टाइम दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी विल नॉट पॉप अप एंड यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस काइंड ऑफ complicated thing. The more we will witness, no? So only people who are going to read properly, they're going to win. Otherwise, आपको ETF में पैसा रखो। लास्ट वीडियो में मैंने बोला है, अभी भी मैं बोलूंगा कि इफ डोंट एक्सपेरिमेंट, कि आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, आप ऐसे ही जा रहे हो किसी के बोलने के, किसी ने बोल दिया ये ले लो, आपने ले लिया, वो चल गया। देखो, इंडिया में एवरीथिंग विल रन एंड गिव प्रॉफिट वन और अदर डे मैनेजमेंट इज गुड, बट वो ब्लाइंड आपके लिए विन होगा और ब्लाइंड लूज होगा किसी के कहने के ऊपर। आप अगर डेप्थ में जाके स्टडी करते हो ठीक है, बट उसको और रिफाइन कैसे कर सकते हो? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, गुआवा रहेगा, एवोकाडो रहेगा, एप्पल रहेगा। आपको चूज करना है कि कौन मुझे, अगर बोला जा रहा है कि आपको डेली यही मिलेगा, एक फ्रूट आपको खरीदना है, तो आप एवोकाडो चूज नहीं करोगे, हो सकता है कि सप्लाई बंद हो जाए, हो सकता है कि आपको बजट कम हो जाए। वैसे ही आपको क्या समझ में आता है, किसमें डिमांड ज्यादा रहेगा मार्केट में? आपको पता नहीं है वोगन में क्या होगा, आप पढ़ते नहीं हो, आप दूसरे को पूछते रहते हो क्या हुआ क्या हुआ, तो उससे नहीं होगा। बट इफ यू थिंक कि बर्गर, पिज्जा, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, शेयर ट्रेडिंग, or like anything, alcohol, drinks, entertainment, this kind of industry will do good, क्योंकि सारे लोगों को स्पेंड ही करना है। 140 करोड़ लोग अगर थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे वो लोग स्पेंड करेंगे। वे स्पेंड दो तरीके का होता है कि डेली आप एक एंजॉय कर रहे हो कि थोड़ा बर्गर लेके आए गए, KFC लेके मूवी में चले गए, या आपने कहीं पे बार में चले गए, दिस काइंड ऑफ थिंग पीपल आर डूइंग। उसके बाद तबीयत इतना खराब हो गया, आप हॉस्पिटल चले गए। सो ऑल दीज आर चेन, कि जहां पे पैसा कंटिन्यूअस आने का चांस है। मैं सिर्फ हैबिट का बात बोल रहा हूँ। और आप अगर उसी जगह पे वॉगन में, डिफेंस में, शिप बिल्डिंग में कर दिया है और आप पढ़ नहीं रहे हो, क्या हो रहा है? गिरेगा मार्केट, फिर से चलेगा। अब सेंटिमेंट ड्रिवन, अब विदाउट नॉलेज अब सेंटिमेंट पकड़ के इस तरीके का सेक्टर में मत जाना चाहिए। ठीक है, आपको पैसा मिल जाएगा, 30-40% लेके निकल जाओ। अगर ब्रीद वाला कॉन्सेप्ट कोई फॉलो करता है प्रॉपरली, जब 200, 250, 300 स्टॉक आ जाता है, आपको जहां पे भी कॉन्फिडेंस है उसमें तो 20%, 30% कुछ ना कुछ मिल ही जाए। एंड जब वो 1500 स्टॉक दिखना स्टार्ट हो जाए, 1400, 1500, 1200, ट्राई टू जस्ट क्लोज क्लोज, कि नहीं मुझे ना धीरे धीरे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इतने सारे लोग कैसे बुलिश हो रहे हैं। सो दिस इज द वीडियो। Avoid businesses which you don't understand. India is a spinning track, consumption driven. उसमें फर्स्ट बॉलर नहीं चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी थोड़ा अर्ली लेवल पे है। आप अगर कोई बुमराह को क्रिएट कर सकते हो, कोई अच्छा पेस बॉलर जो कहीं पे भी किसी भी पिच में ले सकता है, उसी तरीके का वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस विद वेरी गुड मोड, आप उसको ले सकते हो। बहुत सारे लोगों का केस स्टडीज या कुछ स्टॉक रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए बोला, रिक्वेस्ट आते हैं। देखो, स्टॉक रिलेटेड डिस्कशन क्यों मैं नहीं करता हूँ,
कि ये कंप्लीटली एक ओपिनियन ओरिएंटेड होता है कि मेरा मुझे क्या लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सही होगा। और मैं जिस तरीके का स्टॉक मैं जो मेजरली मैं करता हूँ वो बहुत ही छोटा माइक्रो कैप है। और जो डिसेंट है वो शायद मेरा ठीक है एक बैलेंस करने के लिए लार्ज कैप स्मॉल कैप। बट मोस्ट फोकस ऑफ माई स्टडी एंड रिसर्च ऑन अ माइक्रो कैप। और जो भी लार्ज कैप है, मैं सोचता हूँ कि भाई 300-400-500 करोड़ का कंपनी लो, उसका 2,000-3,000 करोड़ तक बड़ा कर दो। जैसे कि आपने 10 साल का विराट कोहली पे चैलेंज दिया है, हो सकता है, नहीं तो पृथ्वी शॉ भी हो सकता है, थोड़ा रिस्क भी है। और 30 साल में आप किसी को भी दे दो, वो भी कुछ पैसा बनाए। आई टेक दिस काइंड ऑफ अ डिसीजन कि और मैं मुझे जो सेक्टर अच्छा लगता है उस सेक्टर में लेता हूँ, जो भी समझ में आता है। आई डोंट रिग्रेट, आई एम नॉट के रिग्रेट रहेगा मार्केट में। इतना मुझे समझ गया हूँ कि मार्केट में आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि विल बी एंटरिंग एट अ बॉटम एंड क्लोजिंग एट अ टॉप। कीप समथिंग फॉर अदर्स, एट द सेम टाइम मेक मनी वेर यू अंडरस्टैंड। आपका नसीब से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि मैं जो स्टॉक लूं वो स्टॉक 2x हो जाए और आपने जो स्टॉक लिया वो 20x हो जाए। तो मार्केट में एवरी वन इज सेम। लक के ऊपर ही 100% है। लक के साथ थोड़ा कॉमन सेंस कि मुझे क्या समझ में आता है। बाकी अगर आप मेरे बहुत सारे वीडियो है, हाउ टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर, हाउ टू थिंक, वो सारे वीडियो आप देखोगे ना, आपको एक बहुत सारे चीज की क्लैरिटी क्लैरिटी आपको मिलते जाएंगे। और बाकी अगर ये सारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, थोड़ा शायद लंबा हो गया बोलते बोलते, तो आप सबके साथ शेयर करो, कुछ ना किसी को बेनिफिट होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर spending this much time for my video.